जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल एंड वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर रिप्रोडक्शन और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स reproduce. In the previous video, we have seen some asexual modes of reproduction like fission, fragmentation, regeneration, and budding. And today we are going to discuss about the remaining asexual modes of reproduction in your NCERT book, that is about vegetative propagation, tissue culture, and spore formation. So by that we will be completing with all the modes of asexual reproduction by today. If I ask you कि कोई प्लांट ग्रो करना है तो आप कैसे ग्रो कर सकते हो, तो यू विल से मी दैट यू कैन सो द सीड्स ऑफ दैट प्लांट. तो आप प्लांट को ग्रो कर सकते हो बाय सोइंग द सीड्स. बट इफ आई आस्क यू कि सीड्स नहीं, सीड्स के अलावा क्या आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, देन यू माइट रिकॉल कि यस, वंस आई वेंट टू माई आंट्स हाउस एंड वहाँ पर रोज बहुत ब्यूटीफुल था एंड वी ब्रॉट अ स्टेम कटिंग ऑफ द रोज एंड फिर हमने उसे अपने घर में पूरा एक कंप्लीट प्लांट रोज का उगाया था एंड दैट्स बेयरिंग द सिमिलर फ्लावर्स. जैसे फ्लावर्स आंट के घर पे थे वैसे ही फ्लावर्स इस रोज प्लांट में भी आ रहे हैं एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल. तो दैट इज वन मोर वे. उसके अलावा यू माइट हैव सीन कि पोटैटो में आईज डेवलप हो जाती हैं. दैट इज द आईज ऑफ पोटैटो. पोटैटो इटसेल्फ इज अ मॉडिफाइड स्टेम. तो स्टेम से हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीटली न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. ओके, तो ये ग्रोइंग अ प्लांट बाय यूजिंग some other parts other than the seeds. Without using the seeds, if we are growing a plant, then that method of growing the plants, that mode of reproduction seen in plants is known as vegetative propagation. Now, what is vegetative propagation? Vegetative propagation means we are using some vegetative part, that is the non-reproductive part of a plant, and we are growing a complete plant out of that. Okay? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इंक्लूडेड होता है कटिंग, लाइक स्टेम को कट किया और उसको आके आपके सॉइल में ग्रो करने के लिए डाल दिया एंड इट इज गोइंग टू ग्रो, इट इज गोइंग टू डेवलप द रूट्स एंड फिर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. तो ये कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये अलग अलग मेथड्स होते हैं by which we can do vegetative propagation. Vegetative propagation specially useful होता है कुछ plants में like sugarcane, bananas, rose, jasmine, because they all either do not produce seeds या इनके seeds बहुत अच्छे से viable नहीं होते, जो अच्छे से survive नहीं कर पाते. तो ऐसे plants में ये vegetative propagation method बहुत important है. What is most important for your exams is the question, that is what is the significance of vegetative propagation. Significance means benefits या importance. The question benefits, importance या significance पूछे आपसे means you have to write the same answer. तो what is vegetative propagation से भी ज़्यादा important question है आपके exams के लिए, that is what is the significance or what are the benefits of vegetative propagation. तो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स. बट वही, ये बेनिफिट्स भी आप जानते हो, बस रिकॉल करवाऊंगी मैं आपको. ओके, सो यू ऑल नो द बेनिफिट्स, बस जस्ट रिकॉल करते हैं एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू मेमोराइज एवरीथिंग. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द सेम एग्जाम्पल. आप किसी के घर पर गए, आपको वो फ्लावर या फ्रूट बहुत अच्छा लगा एंड यू ब्रिंग अ कटिंग ऑफ दैट प्लांट एंड यू एक्सपेक्ट कि आपके घर पे जब आप उसको ग्रो करोगे तो उसमें भी ऐसे ही फ्लावर्स आएंगे. And it happens also. ऐसा होता है because the genetic material is the same. And so जब भी आप plants को vegetative propagation से grow करते हो तो daughter plants will be having the same qualities that are there in the parent plant. और यही है benefit vegetative propagation का. अगर हमें same quality चाहिए daughter plants में that was there in the parent plant, तो हम use कर सकते हैं method of vegetative propagation. Okay? So first of benefit of that is we can get exactly the same quality in the daughter plant as that of the parent plant. Now second benefit, rose के लिए specially cutting use करा जाता है. उसके अलावा bananas and if we talk about jasmine, इन plants के लिए vegetative propagation बहुत frequently use होता है, even for grapes, क्योंकि ये सारे plants are the seedless plants. इनके seeds बहुत अच्छे से develop नहीं होते या फिर वायबल नहीं होते बहुत ज़्यादा अच्छे से, लाइक दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव वेरी वेल. तो ऐसे सीडलेस प्लांट्स लाइक ग्रेप्स और द प्लांट्स हैविंग नॉट वेरी वायबल सीड्स, वायबल मीन्स लिविंग,
तो सीड्स बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते, ऐसे प्लांट्स के लिए, सीडलेस प्लांट्स के लिए ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, because by using vegetative propagation we can grow seedless varieties of plants. Okay, so that is the second benefit of vegetative propagation. Now the third benefit, which is also very nice. जब आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट ग्रो करते हो तो वो जल्दी फ्लावर या फ्रूट बेयर करना स्टार्ट कर देता है. जो टोटल टाइम कंज्यूम्ड होता है एक प्लांट का, दैट इज टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम ग्रोइंग अ सीड, वो कट शॉर्ट हो जाता है. तो जब प्लांट को आप सीड से ग्रो करते हो तो वो ज़्यादा टाइम लगता है, बट अगर आप प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करोगे तो उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आने में कम टाइम लगेगा. सो इट विल बी कंज्यूमिंग लेस टाइम to give the fruits and flowers as compared to growing a plant from the seeds. So that is another benefit of vegetative propagation. Okay. By the use of vegetative propagation, we can grow the plants from their stem, roots, and even from their leaves. Yes, we can grow a new plant just from the leaves also. But that example is bryophyllum. So in case of bryophyllum leaf, you can see that the leaf develops some leaflets. लीफ के ऊपर साइड में कुछ लीफलेट्स आ जाते हैं और इन लीफलेट्स में रूट्स भी डेवलप होने लग जाते हैं. नाउ जब ये लीफ जमीन पे गिरेगी, व्हेन दिस लीफ विल फॉल ऑफ ऑन द ग्राउंड, देन फ्रॉम दिस लीफ ओनली दीज लीफलेट्स आर गोइंग टू स्टार्ट डेवलपिंग इनटू अ कंप्लीट प्लांट. तो ब्रायोफिलम लीफ यूज करके भी आप एक कंप्लीट प्लांट ग्रो कर सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, so vegetative propagation is seen in plants, and that is an asexual mode of reproduction seen in plants. So if you are asked in your exams, explain one of the asexual mode of reproduction seen in plants, तो हम कहेंगे about vegetative propagation. प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल होता है, सीड्स के थ्रू भी वो ग्रो होते हैं, एंड उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द सेम चैप्टर बट इन सम अदर टॉपिक व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ we'll move on to the next method of reproduction, that is tissue culture. Tissue culture मतलब हम culture का मतलब होता है grow करना. On tissues, you all know what are tissues. A group of cells is known as tissues. तो हम किसी प्लांट के सिर्फ थोड़े से सेल्स को यूज करके अगर नया प्लांट ग्रो कर लें तो दैट मेथड इज नोन एज टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर मेथड में क्या किया जाता है, दैट ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट से थोड़े से सेल्स लिए जाते हैं. तो हम थोड़े से सेल्स या टिश्यू लेते हैं from the growing tip of the plants. Why only tip of the plant? Growing tip of the plant पर अगर याद हो 9th क्लास का कुछ, तो apical मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, और ये प्लांट टिश्यूज बहुत फास्ट डिविजन करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं. तो हम प्लांट के अपेक्स से थोड़े से टिश्यूज लेते हैं और उन्हें एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख देते हैं. आर्टिफिशियल मीडियम में जब हम इनको प्लेस करते हैं तो ये वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. ये सेल्स डिवाइड होते हैं एंड दे इंक्रीज इन नंबर. जब ये ग्रो हो जाते हैं तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज कैलस. इट डेवलप्स इनटू कैलस. तो इसे कहा जाता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो फॉर्म हुआ है दैट इज नोन एज कैलस. अब इस कैलस को हम दूसरे एक कल्चर मीडियम में डालते हैं जिसमें हार्मोन्स और ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस कैलस के सेल्स के ग्रोथ के लिए. तो और आगे ग्रो करवाने के लिए हम दूसरे मीडियम में उसको ट्रांसफर करते हैं जिसके अंदर हार्मोन्स एंड ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. हार्मोन्स और ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस में ये कैलस और डेवलप होंगे एंड दैट विल बी डेवलप्ड इनटू प्लांटलेट्स. जब ये प्लांटलेट्स फॉर्म हो जाएंगे, मींस छोटे छोटे प्लांट्स फॉर्म हो जाएंगे, तब हम इसको सॉइल में ट्रांसफर कर देंगे, एंड सॉइल में जब हम ट्रांसफर करेंगे देन दे विल बी एबल टू ग्रो वेरी वेल. ये टिश्यू कल्चर मेथड इज स्पेशली यूजफुल फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ऑर्नामेंटल प्लांट्स मीन्स जो बहुत खूबसूरत लीव्स होती हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, सच नोन ऑर्नामेंट्स की तरह ब्यूटीफुल है ना. ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी. तो ज्वेलरी जितने खूबसूरत प्लांट्स के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, बिकॉज ये प्लांट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं. अगर इन्हें हम नेचुरल कंडीशंस में ग्रो करते हैं तो समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. अगर इनके ऊपर इन्फेक्शंस जल्दी अटैक होते हैं, दे आर अटैक्ड मोर इजीली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो अगर हम टिश्यू कल्चर मेथड से इन्हें ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पर टिश्यू कल्चर में एक कंट्रोल्ड मीडियम होता है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम इनको ग्रो कर पाते हैं. और क्योंकि हम इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, सो दे वुड बी एबल टू ग्रो वेरी वेल. ओके, तो दैट इज द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर.
The next method of asexual reproduction is spore formation. Spore formation is seen in bread mold. आपने कई बार देखा होगा कि ब्रेड या चपाती, इफ यू जस्ट कीप इट ऑन समवेयर एंड यू फॉरगेट अबाउट इट, देन उस पर एक ग्रीनिश फंगस ग्रोथ हो जाती है, एंड दिस इज ओनली ब्रेड मोल्ड. दिस इज नोन एज ब्रेड मोल्ड, जिसे कहते हैं राइजोपस. नाउ ये राइजोपस कैसे ग्रो होती है, हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी. ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक asexual mode of reproduction से reproduce कर रहा है, but it is also having some special reproductive cells for its development. तो इसमें कुछ particular part है body का जो कि develop होगा. So एक particular reproductive part है from which this sporangium is going to develop. So let's see what is there in rhizopus. Rhizopus या bread mold grow होते हैं spores से. These spores are very light in weight and they could be easily carried with wind. जब इन्हें कोई favorable condition मिलती है, like a bread kept in your kitchen, then it starts growing over it. वो उस पर settle down हो जाते हैं and settle होने के बाद उस पर grow करना start कर देते हैं. जब ये grow करते हैं तो ये एक root like structure develop करते हैं, that is known as hyphae. उसके अलावा इनमें एक stem like structure, मतलब एक stick like structure grow होता है. इस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर होता है एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम. ये स्पोरेंजियम है जहाँ पर डेवलपमेंट होता है स्पोर्स का. तो इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे सेल्स डेवलप होंगे एंड दीज सेल्स आर नोन एज स्पोर्स. ये स्पोर्स ही फिर लीड करेंगे टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू राइजोपस. सो फ्रॉम दीज स्पोर्स ओनली न्यू राइजोपस कैन डेवलप. नाउ जब ये स्पोरेंजियम पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है एंड दैट स्प्रेड्स द स्पोर्स इनटू द एनवायरनमेंट. जब ये स्पोर्स एनवायरनमेंट में आएंगे तो ये स्पोर्स बहुत लाइट एंड वेट होते हैं एंड दे विल बी इजीली कैरिड विद विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वन मोर बेनिफिट इज देयर इन द स्पोर्स. इन स्पोर्स के अराउंड एक बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, और ये जो कवरिंग है ये प्रोटेक्टिव होती है इन स्पोर्स के लिए. इस कवरिंग की वजह से दे कैन सर्वाइव इन एनी अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, इन्हें कोई ग्रोथ मीडियम नहीं मिलता, कोई ऐसी ब्रेड नहीं मिलती या चपाती नहीं मिलती जिसपे ये न्यूट्रिएंट्स लेकर ग्रो कर सकें, तो ये ऐसे ही स्पोर्स के फॉर्म में हवा में या इट विल बी देयर अराउंड यू and it will remain like that. It will not grow, but it will still be surviving. Whenever they will be getting favorable conditions, तब ये spores में से नए rhizopus develop होना start हो जाएंगे. तो one of the benefit of that is that they can survive in any unfavorable conditions also for a long period of time, and whenever they get favorable conditions to grow, then they will be growing and they will be developing into bread mode. Okay, so that is given as one of the questions in your NCERT book also कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन से डेवलप होता है तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल है ये. तो ये इस तरह से बेनिफिशियल है that it is going to help its growth and that can develop into an organism whenever it gets the favorable conditions. Okay, I hope the spore formation and tissue culture, vegetative propagation, whatever we have seen in this video, that's all clear to you all. I hope the concepts are clear to you all. If that is so, do share the video with your friends as well. And subscribe to my channel if you haven't already. That's all for today. Have a very nice day and take care of yourselves.